This third lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatever I have discussed in the previous unit, that is in unit 5, financial management. So under financial management, we have discussed and learned about functions and objectives of financial management, types of capital, sources of raising capital, budget and account, types of budgets, where we discuss about production budget, labor budget, then introduction to profit and loss account, balance sheet, and finally we have discussed about excise duty, service tax, income tax, value added tax, custom duty, and goods and service tax. Now I am going to start unit 6, that is material management. Okay, so under material management, today I will discuss about inventory management. Okay, so let us start with learning outcome of this session. Any learning outcome of inventory management. So after this session, inventory management, this is, so after this session, students will be able to describe the material management, discuss the functions of material management, explain the objectives of inventory management, define inventory, describe the importance of inventory management. Okay, so let us start with introduction of material management. Okay, so material management is a function which aims for integrated approach towards the management of materials in an industrial undertaking. ओके, यानी जो सामग्री प्रबंधन है, जो मटेरियल मैनेजमेंट एक कार्य है, फंक्शन है, जिसका उद्देश्य एक औद्योगिक उपक्रम में सामग्रियों का प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच को अप्लाई करना है. मेन ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट रिडक्शन and efficient handling of materials at all stage in all section of undertakings. Okay, next है material management includes several important aspects connected with materials such as purchasing, storage, inventory control, material handling, स्टैंडर्डाइजेशन एटसेट्रा. तो जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स से कनेक्टेड है, चाहे वो परचेज करना हो रहा मटेरियल्स का, उसका स्टोरेज करना हो, इन्वेंट्री का कंट्रोल रखना हो, मटेरियल को नियमित उसको हैंडलिंग करना हो, उसका स्टैंडर्डाइजेशन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है. अब मटेरियल मैनेजमेंट कवर्स ए वेरी वाइड फील्ड एंड डील्स विद मटेरियल कॉस्ट्स, इट्स सप्लाई, यूटिलाइजेशन एंड हैंडलिंग. अर्थात जो सामग्री प्रबंधन है वो एक बहुत व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, जो लागत, इसकी आपूर्ति, इसका यूटिलाइजेशन दैट इज उपयोग और हैंडलिंग से संबंधित है. इट कंसर्न विथ planning and programming of materials and equipments, market research for purchase, procurement of materials, capital goods, raw materials, components and semi finished goods, इसके procurement, इसके खरीद से, packaging, storage and inventory control, transportation of materials, material handling, disposal of scrap and surplus, etc. यानी जो ये मटेरियल मैनेजमेंट है, ये चाहे वो प्लानिंग हुआ, कब खरीदना है, उसका प्रोग्रामिंग ऑफ मटेरियल और इक्विपमेंट्स जो भी है, संसाधन जो इक्विपमेंट हैं, मार्केट रिसर्च हैं ना, फॉर परचेज, प्रोक्यूरमेंट, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, रॉ मटेरियल हो,
कच्ची सामग्री या कंपोनेंट्स हो या अर्ध जो है कि सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, इन सबों को खरीदने के लिए। पैकेजिंग उसका किस तरह से करना है, स्टोरेज और इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन उसका किस तरीके से करना है एक जगह से दूसरे जगह, फिर जो है कि जो साल्वेज उसकी मतलब क्षति से कैसे बचाया जाए, मटेरियल को किस तरीके से हैंडल करना है, डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप एंड सरप्लस, यदि कुछ स्क्रैप है तो उसकी को किस तरीके से निपटारी उसका निपटान करना है, इन सारी चीज़ों का उसमें वर्णन आता है। अकॉर्डिंग टू Bethel, material management is a term used to connote controlling kind, amount, location, movements, and timing of various commodities used in and produced by the industrial enterprise. यानी इनके अनुसार जो है जो बेथल हैं वो कहते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट एक शब्द है जो कनोट करता है, जो बताता है कंट्रोलिंग ऑफ काइंड, वस्तुओं को, अमाउंट को, लोकेशन को, मूवमेंट उसका आवागमन, एंड टाइमिंग ऑफ वेरियस कमोडिटीज यूज्ड इन एंड प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज। वो और बहुत सारे की टाइमिंग की किसका कब यूज होना है और जो कि इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसका, ठीक ना, ये सब बताता है, इसका पूरी कंट्रोल, उसका नियंत्रण, उसका हैंडलिंग, उसका मूवमेंट, इन सारे चीज़ों का से इसका संबंध है। मटेरियल मैनेजमेंट फॉलोज ए सिस्टमेटिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज। जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो एक सिस्टमेटिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच को एक सैद्धांतिक और एक एकीकृत दृष्टिकोण को लेकर चलता है, दैट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज, जो बहुत सारे एक्टिविटीज को एक साथ लेकर चलता है, तभी जाकर उसका इफेक्टिव और इफिशियंट मैनेजमेंट हो पाता है। तो दीज एक्टिविटीज आर फ्लोइंग, और क्या क्या एक्टिविटीज होता है उसका एक एक करके वर्णन करते हैं। पहला है मटेरियल प्लानिंग। तो मटेरियल प्लानिंग डिटरमाइंस द नीड्स ऑफ कस्टमर इन एडवांस। कस्टमर का प्लानिंग में क्या जरूरत है उसको हम एडवांस में डिसाइड करते हैं मटेरियल प्लानिंग में। देन मेक और बाय डिसीजन, बनाने या खरीदने का डिसीजन। तो इट डिसाइड विच आइटम कैन बी प्रोड्यूस्ड एट होम प्लांट एंड विच शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। अब जो है कि इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि किस आइटम को हम अपने होम प्लांट में ही इसका प्रोडक्शन करें और किस आइटम को खुद ही खरीद कर उसको परचेज करके बाहर से और हमें बेचना चाहिए, ये डिसाइड करने में हेल्प मिलता है, जो कि कॉस्ट एनालिसिस से हम पता करते हैं जो अवेलेबल कॉस्ट है। देन परचेजिंग, इफ इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, पार्ट्स, components, consumables to meet टारगेट ऑफ द प्रोडक्शन। यानी जो परचेजिंग है यह लगातार सप्लाई करता है रॉ मटेरियल्स का, और रॉ मटेरियल्स उसके पार्ट्स का, कंपोनेंट्स का और कंज्यूमेबल्स जो है एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं ताकि जो टारगेट प्रोडक्शन है उसको प्राप्त करें। तो उसको कब हमें परचेज करना है, कितनी मात्रा में, किस मटेरियल को करना है, ये इसमें डिसाइड होता है। तो ये भी इसके कंपोनेंट हुआ। उसके बाद रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन। तो रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन में हम जो चीज़ रिसीव करते हैं फिर उसका जो है प्राप्त करने के बाद उसका निरीक्षण करते हैं कि इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। तो कलेक्ट मटेरियल एंड इंस्पेक्ट देम टू इंश्योर देयर क्वालिटी। इनको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इंस्पेक्ट करते हैं क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी है कि नहीं अकॉर्डिंगली। तो दिस हेल्प टू डिसाइड वेदर द मटेरियल शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट फॉर फर्दर प्रोडक्शन ना। जो मटेरियल है उसको फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, पर आगे उत्पादित करने के लिए हमें स्वीकार करना है कि नहीं स्वीकार करना है, ठीक। देन उसके बाद है स्टोरेज ना। क्योंकि एक्चुअली इसलिए कि इसमें हम ये जांच करते हैं कि जो सही में वो लेने लायक है नहीं है, उसमें डिफेक्शन तो किसी प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। स्टोरेज प्रोवाइड राइट प्लेस टू स्टोर मटेरियल्स, proper methods of preservation, and also provides proper security against theft and malpractices।
किसी प्रकार की जो उसको संरक्षण देना है, भ्रष्टाचार, व्यवस्था, चोरी से बचाने के लिए स्टोरेज की ज़रूरत होती है और ये स्टोरेज जो है राइट प्लेस पे होता है और इसमें उचित मेथड का यूज किया जाता है ताकि जो है इसकी सिक्योरिटी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखा जा सके ना। हर तरीके से, चाहे वो माल प्रैक्टिस से हो, थेफ्ट से हो या इसको सुरक्षित रखने से हो। उसके बाद नेक्स्ट 6 पॉइंट है दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स स्टॉक सूची नियंत्रण। ओके, so maintains optimum investment in inventories and also ensure supply materials which are required for the production at right time। यानी कि यह बोलता है कि जो यह इन्वेंट्री में इष्टतम निवेश बनाए रखने के लिए जो ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट बनाया रखता है ये जो मटेरियल मैनेजमेंट, और सही समय पर उत्पादन के लिए आवश्यक जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है सामग्री को, उनको उपलब्ध कराना ये सुनिश्चित करता है ना। आल्सो इंश्योर द सप्लाई ऑफ मटेरियल, ताकि किसी प्रकार का जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में बाधा न उत्पन्न हो। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। ओके, तो इंश्योर फास्टेस्ट एंड इफिशिएंट सप्लाई ऑफ मटेरियल टू द कस्टमर, यानी ग्राहकों को सामग्री की फास्टेस्ट और इफिशिएंट सप्लाई भी सुनिश्चित होता है इससे, क्योंकि हमारे पास मटेरियल मैनेजमेंट है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, इसलिए हम इसको कर पाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इट इंश्योर इफिशिएंट मूवमेंट्स ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग मटेरियल, और यह जो है कि जो इनकमिंग आने वाला मटेरियल, जाने वाला मटेरियल, उनका जो है सही तरीके से इफिशिएंट मूवमेंट ना आवागमन को भी ये देखता है। और 9th पॉइंट दैट इज डेवलपिंग न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई, लोकेट, select, develop new sources of supply materials for improving the product quality and reducing the total cost of production। यानी यह जो है वह उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और उत्पादन की कुल लागत को कम करने के लिए सामग्री की आपूर्ति के लिए नए स्रोत का पता लगाता है, फिर उसका चयन करता है और उसको विकसित करने की भी कोशिश करता है। तो ये है यानी डेवलपिंग न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि हम जो चीज खरीदते थे वो खुद ही अपने पास बनाए, यानी डिस्कवर इंडिजेनस सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा है, उसको बचाने के लिए हम स्थानीय या स्वदेशी वस्तुओं की खोज करते हैं कि किस तरीके से जो आयातित वस्तुएं यूज न करके स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। मटेरियल रिसर्च, उसके बाद जो है फर्स्ट पॉइंट, मटेरियल रिसर्च एनालाइज ऑल फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, price analysis, transportation analysis, lead time analysis, etc. that affects the function of material management। अर्थात जो इकोनॉमिक एनालिसिस है वो मटेरियल रिसर्च का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इसके बिना इसके जो भिन्न भिन्न पहलू हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं, तथा मटेरियल रिसर्च में शॉर्ट रन हुआ या लॉन्ग रन हुआ कि आर्थिक मामलों को लिया जाता है, कि चाहे वो हो गया कि इकोनॉमिक एनालिसिस की आर्थिक स्थिति क्या है, मार्केट एनालिसिस मार्केट में कंडीशन क्या है, डिमांड का, लो डिमांड, हाई डिमांड, सप्लाई एनालिसिस में और वस्तुओं का क्या कंपटीटर्स सेम प्रोडक्ट के साथ मार्केट में है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस पर के, तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से मार्केट रिसर्च करके अपने डिमांड को जानने की कोशिश करता है। और लास्ट दैट इज 12 पॉइंट इज वेस्ट मैनेजमेंट। तो मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स by determining the causes for rejection and scrap of materials। अर्थात सामग्री का रिजेक्शन और स्क्रैप के कारणों का निर्धारण करके सामग्री की जो बर्बादी है, जो मटेरियल की बर्बादी है, उसको कम करने की कोशिश करता है। Thus, material management is a scientific technique
concerned with planning, organizing and controlling of flow of materials for their initial purchase to destination ना। तो इस प्रकार मटेरियल मैनेजमेंट एक वैज्ञानिक तकनीक है जो कि प्लानिंग उसके व्हाट आई हैव टू डू ना इन एडवांस वो सोच लेता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से मटेरियल को कंट्रोल करता है ताकि जो है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसको मीट किया जा सके। अब आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यहाँ आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है नो न्यूमेरिकल, इसीलिए मैं भी यहाँ लिख दिया नो न्यूमेरिकल। यहाँ किसी इसमें न्यूमेरिकल का डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ इसका कंसेप्ट और थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर वी टॉक अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट इज इन्वेंट्री। ओके, so inventory is the collection of unsold product waiting to be sold। यानी इन्वेंट्री जो है जो बिका नहीं हुआ प्रोडक्ट है जो कि अपने को बिकने की प्रतीक्षा में है उसका कलेक्शन है। इन्वेंट्री इज लिस्टेड एज ए करेंट एसेट्स ऑन ए कंपनीज बैलेंस शीट। जो है कंपनी के बैलेंस शीट में वो करंट एसेट में उसका मेंशन होता है। इन अदर वर्ड्स इट इज डिटेल्ड लिस्ट ऑफ मूवेबल गुड्स इन सच एज raw materials in process, okay, finished products, general supplies and equipments etc। तो ये सारी चीज़ें जो है आती है हमारे इन्वेंट्री में, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे प्रोसेस में हो, या फिनिश्ड गुड्स हो, या अनफिनिश्ड गुड्स हो। अब टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री देखते हैं। तो इन्वेंट्री 3 टाइप्स को होते हैं। पहला होता है रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश्ड गुड्स का। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इन्वेंट्री इज जनरली कैटेगराइज्ड एज रॉ मटेरियल, ओके, देन वर्क इन प्रोग्रेस and finished good. Raw materials, they include raw materials and other supplies, parts, components which enter into product during यहाँ दे होगा THE, ध्यान रखिएगा आप लोग, during the production process। ओके, कहता है कि include raw materials and other supplies, parts and components which enter into the production process, जिसको प्रोडक्शन प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट या सेमी प्रोडक्ट के लिए इंटर करना है, उनका स्टॉक होता है। एग्जाम्पल ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्लूड्स such as aluminum and steel for manufacturing of cars, for bakeries production of bread ना, एल्युमिनियम जो रखा गया है कार के मैन्युफैक्चरर के लिए, आटा रखा गया बेकरीज जो है कि रोटी बनाता है, ब्रेड बनाता है उसके लिए, एंड क्रूड ऑयल्स हेल्ड बाय refineries etc। आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। दीज आर पार्शियली फिनिश्ड गुड्स वेटिंग फॉर कंप्लीशन एंड रीसेल। ये जो है कि या तो कंप्लीशन की प्रतीक्षा में रहता है या इसको उसी स्टेज में वहां से बेचा जाता है, जो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। सो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री इज अदरवाइज नोन एज इन्वेंट्री ऑन प्रोडक्शन फ्लोर। फॉर एग्जाम्पल, हाफ असेंबल एयरलाइन, पार्शियली कंप्लीटेड याट, नौका जो है हुआ, वुड बी वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस का एग्जांपल है। अब फिनिश्ड गुड्स आप देखिए, फिनिश्ड गुड्स दीज आर कंप्लीट फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी फॉर सेल। ये जो है कि वो गुड्स होते हैं जो कंप्लीटली फिनिश्ड होकर वहाँ पर प्रतीक्षा में है अपने आप को कि हम कब बिके, यानी अपने को बिक्री की प्रतीक्षा में ये वहाँ पे है। अब हम आते हैं थर्ड, दैट इज मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, inventory management involves keeping track of a company's stock goods. It monitors their weights, dimensions, amount and location। यानी जो इन्वेंट्री है मैनेजमेंट है वो कंपनी में के स्टॉक में किए गए सामानों पर नज़र रखता है। जो स्टॉक में रखे गए हैं उन पे नज़र बनाए रखता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो वस्तु है स्टॉक करके रखा उस पर नज़र रखा जाता है कि और मॉनिटर करता है उसके वेट को, डायमेंशन को, अमाउंट, लोकेशन। दिस हेल्प बिजनेस ओनर टू नो व्हेन इट इज टाइम टू रिप्लेनिश प्रोडक्ट्स। यानी कब इसको फिर से भरना है, कितना इन्वेंट्री खाली हो गया और बाई मोर
मटेरियल टू फंक्शन दे, और कब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल खरीदना है ताकि हम सही तरीके से फंक्शन कर पाएँ, स्मूथली फंक्शन कर पाएँ। Effective inventory management is essential for ensuring business has enough stock on hand to meet customer demands. यानी जो इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जो अच्छा उसको इसको पूरा कर लेते हैं पहले। तो इफेक्टिव इंश्योर बिजनेस हैज इनफ स्टॉक ऑन हैंड टू मीट कस्टमर डिमांड। If inventory management is not handled properly, it can result in a business either losing money on potential sales that cannot be filled or wasting money by stocking too much inventory। अर्थात ये कह रहा है कि जो इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट यदि इन्वेंट्री प्रबंधन को ठीक से नियंत्रित नहीं करे ना, फिर कहता है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट इसेंशियल है, जरूरी है इंश्योरिंग बिजनेस के लिए, हैज इनफ स्टॉक ऑन हैंड टू मीट कस्टमर डिमांड। जो कस्टमर की डिमांड है जो अप और डाउन हो तो उसको मीट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इन्वेंट्री में सामान मौजूद है। लेकिन इफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, लेकिन यदि इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम एक व्यवसाय में या तो संभावित बिक्री पर पैसा खो सकता है जिसे भरा नहीं जा सकता, या बुरा या बहुत अधिक कह सकते हैं कि इन्वेंट्री को स्टॉक करके पैसा बर्बाद कर सकता है। नहीं बोलता है ना, इफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज नॉट हैंडल प्रॉपरली इट कैन रिजल्ट इन बिजनेस आइदर लॉजिंग मनी ऑन पोटेंशियल सेल्स दैट कैन नॉट बी or wasting money by stocking too much inventory. Okay, so an inventory management system can help to prevent these mistakes. तो एक जो है उचित जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें मदद करता है इस प्रकार की जो है मिस्टेक, इस तरह की गलतियां ना हो और मार्केट में हमारा जो है कि स्मूथ फंक्शन जो कंपनी है उसका बना रहे। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का महत्व क्या है? तो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमल इन्वेंट्री। एक उचित इन्वेंट्री बना रहे, ऑप्टिमम इष्टतम बना रहे, ये मेंटेन रखना उसका। पोजेसिंग टू हाई अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री फॉर लॉन्ग टाइम इज यूजुअली नॉट एडवांटेजियस फॉर बिजनेस बिकॉज स्टोरेज कॉस्ट, because of storage cost, spoilage cost and threat of obsolescence। यानी कि ज़्यादा अमाउंट इन्वेंट्री में लॉन्ग टाइम पर रहना भी हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। कारण स्टोरेज कॉस्ट आएगा, सामान कुछ बर्बाद होंगे, वो अलग है। थ्रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, और ये भी रहेगा कि कुछ समय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी रहता है तो वस्तुएं पुरानी पड़ जाए, तो ये सारे खतरा बना रहता है। ऑन द अदर हैंड, putting too little inventory is also not advantageous for a business because business run at the risk of market share erosions and losing profit from the potential sales। दूसरी तरफ जो है कि कम भी इन्वेंट्री को रखना भी बिजनेस के सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि हमेशा मार्केट के जो रिस्क रहेगा कि कब जो है कि अप और डाउन आएगा और हमें लॉस झेलना पड़े, या प्रॉफिट और लॉस जो पोटेंशियली है सेल पे वो उसकी जो है कि क्षतिपूर्ति हमको क्षति हो सकता है। अब देयर आर 5 रीजंस कंपनीज मेंटेन इन्वेंट्री। अब कंपनी इन्वेंट्री क्यों मेंटेन करती है, इसके 5 कारण हैं, इसको हम देखते हैं क्या करके। फर्स्ट है टू मीट एन एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन डिमांड, यानी जो है कि प्रत्याशित मांग, जो कंपनी की प्रत्याशित मांग है उसमें वृद्धि होने पर उसकी फुलफिल किया जाए, इसलिए मेंटेन किया जाता है। दूसरा, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि अप्रत्याशित मांग यदि बिना किसी रीजन का मांग बढ़ गया तो उस जो है कि डिमांड को भी फुलफिल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस ब्रेक फॉर ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल्स इन बल्क, अर्थात थोक में
कच्चे माल का ऑर्डर देकर प्राइस ब्रेक का लाभ उठाने के लिए जरूरत आया तो किसी का डिमांड हुआ तो उस तरीके से हम जो है कि इसका ऑर्डर करके हम उसका लाभ उठा पाए। और फोर्थ पॉइंट दैट इज टू प्रिवेंट द आइडलिंग ऑफ ए होल फैक्ट्री इफ वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस ब्रेक डाउन। अर्थात प्रक्रिया का यदि एक हिस्सा ब्रेक हो जाता है या ब्रेक हो जाने पर पूरा कारखाना निष्क्रिय न हो जाए, उससे रोकने के लिए भी इन्वेंट्री को मेंटेन रखा जाता है ताकि ये काम चलते रहे। एंड फिफ्थ पॉइंट इज keep a steady stream of material flowing to retailers rather than making a single shipment of goods to retailer। अर्थात खुदरा विक्रेताओं के लिए मटेरियल का निर्बाध लगातार सप्लाई बनाए रखने के लिए में न करें, जो कि लगातार कहने का मतलब कि जो सप्लाई हो लगातार बना रहे, इसलिए भी जो है इन्वेंट्री मेंटेन किया जाता है ताकि किसी प्रकार का ब्रेक ना आए। ओके, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज टू मेंटेन इन्वेंट्री एट अप्रोप्रिएट लेवल to avoid excessive and shortage of inventory because both the causes are undesirable for business। कहता है कि ये एक अप्रोप्रिएट उचित मात्रा में इन्वेंट्री में हमारे वस्तुएं मौजूद रहें, इसको मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना जरूरी है। और न तो उसमें एक्सेस हो ना ही उसमें शॉर्टेज आए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए अवांछनीय है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इसके जो उद्देश्य है, पहला है टू सप्लाई रिक्वायर्ड मटेरियल्स कॉन्टिन्यूअसली। There should be a continuous available of materials in the factory or finished goods of for trade। यानी कह रहा है कि there should be a continuous available of material in the factory और फिनिश्ड गुड्स फॉर ट्रेड। जो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जो हमेशा मटेरियल फैक्ट्री में अवेलेबल हो और फिनिश्ड गुड्स हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मेंटेन करना हो, इसका उद्देश्य होता है। दस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज टू मेंटेन रिक्वायर्ड इन्वेंट्री सो दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स प्रोसेस कैन रन स्मूथली। उसका उत्पादन करना हो चाहे उसकी बिक्री करनी हो, ये दोनों प्रक्रिया में किसी प्रकार का अड़चन ना आए, बाधा ना आए, स्मूथली रन करे, इसलिए जो है इन्वेंट्री को मेंटेन करना जरूरी है। पॉइंट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अंडर एंड ओवर स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल। इफ a company keeps inventory without proper analysis, there will be a chance of overstocking, which will increase the cost of carrying inventory, and understocking of inventory that create problem in a smooth operation of business। So it is important to minimize the risk caused due to under and overstocking of inventory। ये कह रहा है कि जो रिस्क है चाहे अंडर और ओवर स्टॉकिंग का मटेरियल का, उसको इसके माध्यम से कम किया जा सकता है, क्योंकि ये यदि ओवर स्टॉकिंग होता है तो ये भी एक कॉस्ट हमारे कंपनी पर और बिजनेस पर लाएगा, कैरिंग कॉस्ट, और वो हमारे जो है कि बिजनेस के हेल्थ के लिए बेटर नहीं। दूसरी तरफ यदि अंडर स्टॉक रहता है, जो इच्छित है उससे कम रहता है, वो भी हमारे लिए स्मूथ ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मिनिमम जो मिनिमाइज द रिस्क ड्यू टू अंडर और ओवर स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। तो इन दोनों के माध्यम से हम रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और एक सर्टेन लेवल पे इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। पॉइंट है टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री। मैनेजमेंट नीड्स different information regarding inventory for planning and decision making। A systematic record of inventory helps to provide information regarding the current status of inventory। अब जो है कि एक जो सिस्टमेटिक मेंटेन है नीड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री,
मैनेजमेंट को कि भाई कितनी हमारी रॉ मटेरियल्स है, कितना फिनिश्ड गुड्स है ना, और उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान करना है, डिसीजन लेना है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन सभी में हेल्प करता है। तो ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री हेल्प्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द करेंट स्टेटस ऑफ इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री का करेंट स्टेटस है, जो वर्तमान की स्थिति है, उसका स्नैपशॉट ये प्रदान करता है। जो फोर्थ पॉइंट है, टू रिड्यूस लॉसेज, डैमेजेज एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मटेरियल। यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट एम्स टू रिड्यूस लॉसेज, लॉस को घटाता है, एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मटेरियल्स, और सामग्रियों के दुरुपयोग को कम करता है। So this is done by maintaining proper stocks of materials with utmost care, यानी बहुत सावधानी के साथ पूरा जितनी हमें एक अप्रोप्रिएट लेवल है उस लेवल तक हमें मेंटेन करके रखना होता है। पॉइंट, to minimize the cost associated with inventory, the proper maintenance of information regarding inventory helps to make decision like whether to take discount or not, the size of order to be placed and when to order। यानी जो मिनिमम कॉस्ट एसोसिएटेड इन्वेंट्री है वो हमें यह मदद करता है कि डिसीजन लेने में, लाइक वेदर टू टेक डिस्काउंट और नॉट, छूट लेना है या नहीं, ऑर्डर का आकार कैसा रखा जाए, कितना ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है, ये सब डिसीजन इस आधार पर लिया जाता है कि हमारे इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल कितने हैं, प्रोसेस स्टॉक में प्रोसेस जो है कि अंडर प्रोसेस कितना मटेरियल्स है, कितना फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे, और क्या उचित रहेगा या नहीं रहेगा इस समय इसको परचेज करना। और टू मेक स्टेबिलिटी इन प्राइस, जो प्राइस है, जो कीमत है उसमें स्टेबिलिटी बनाने के लिए, एंड इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट ना an effective inventory management system minimize the effects of regular price fluctuation। तो रेगुलर प्राइस का फ्लक्चुएशन जो होता है, जो नियमित मूल्य में उतार चढ़ाव आता रहता है, उसको कम करता है। क्योंकि जो कभी ओवर स्टॉक हो गया, कभी अंडर स्टॉक हो गया, तो जब हमारे पास इन्वेंट्री रहता है तो हम स्मूथली सप्लाई करते रहते हैं। जिस प्रकार यदि हम डैम बनाकर पानी का स्टॉक करके रखते हैं, तो पानी कम है या ज़्यादा है, लेकिन नहर के माध्यम से रेगुलर सप्लाई करते रहते हैं, उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार इन्वेंट्री से वस्तुएं, जो प्रोडक्ट है, वो रेगुलरली निकलती रहती है, वहाँ कम हो या बेसी हो इसका फ्लक्चुएशन नहीं हो पाता है बाहर में। तो एंड इट्स हेल्प टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ सेलिंग प्राइस, और इस प्रकार जो सेलिंग प्राइस है, जो बेचने की कीमत है, उसमें एक स्टेबिलिटी इससे मेंटेन रहता है। Thus, during this session we have discussed and learned that material management and inventory management, which are essential to maintain the uninterrupted supply of goods, prepare the business for unexpected demands, and keep the business profitable। Okay, so here are some questions for self assessment। ये सारे questions है जो आप खुद अपना सोल्व करके और अपने लर्निंग को चेक कीजिए, और